Welcome guys to dividend decision chapter number 8 of financial management. Okay, we'll start learning outcomes. क्या है बेटा? Understand the meaning of dividend decision, understand the importance of dividend decision, discuss the various form of dividend, discuss various determinants of dividend, explain various theories of dividend decision. कोई दिक्कत? ठीक है, श्योर. चैप्टर ओवरव्यू. फाइनेंशियल डिसीजन में 3 टाइप के डिसीजन है. पहला फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन और तीसरा डिविडेंड डिसीजन. अपना फाइनेंसिंग डिसीजन हो गया, अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया. अभी अपने क्या देखना है? इसमें थियरीज है 4. एक एमएम अप्रोच है, दूसरा वॉल्टर्स मॉडल है, तीसरा गॉर्डन्स मॉडल है, फोर्थ इज लिंटर्स मॉडल. इंट्रोडक्शन. As we had already discussed in chapter 1, scope and objective of financial management. Financial management is the process of making financial decisions so as to increase the value of the firm. Definitely to increase the value of the firm. Long-term finance function decision broadly cover 3 areas: financing, investment, dividend decisions. Now, so far we had already discussed the first 2 decisions, that are financing and investment decision in earlier chapters. In this chapter, we will discuss the dividend decision, which is one of the most important areas of management decision. How much is to be given for the procured capital? Free में है क्या? Something they are expecting. What they are expecting? ये आपने देखा ऑलरेडी. आपको क्यों मालूम है? केडी मालूम है, केई मालूम है, आया ना, केपी मालूम है. तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है. सो नेचुरली वो क्या है बेटा? उनका रेट है, एक्सपेक्टेशंस है. कौन से अप्रोच से क्या देना चाहिए, ये अपने को यहां पे देखना है डिविडेंड डिसीजन में. ठीक है. डिविडेंड डिसीजन इज इजी टू अंडरस्टैंड बट डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट. नेचुरली लेट अस अंडरस्टैंड दिस with the help of an example. Suppose a company, say X Limited, which is continuously paying the dividend at a normal growth rate, earns huge profit this year. Now the management have to decide whether it should continue to pay dividend at normal rate or to pay at an increasing rate. Why this dilemma? The reason is that if the management decide to pay a higher dividend, then it might be possible that in the next year the company will not achieve such higher profit or higher growth rate, resulting in lower dividend payment in comparison to the previous year. However, if the company decide to stay at normal rate of dividend, then surplus amount of retained earning would remain idle, which will result in overcapitalization if no other opportunity exists to utilize the idle fund. Further, there are some other factors also which will affect the dividend decision, will be discussed later. क्या समझा? अगर ये साल अपन ने तगड़ा प्रॉफिट कमा और अपन ने डिसाइड किया कि भाई ज्यादा डिविडेंड देते, तो डू यू हैव एनी गारंटी कि अगले साल भी इतनी ग्रोथ होगी? शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाएंगे ना. फिर अगर अगले साल अपन कम डिविडेंड देंगे तो वो ठीक नहीं लगेगा ना मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म के हिसाब से. आया ना? ये डिसीजन आसान भी है और डिफिकल्ट भी है. अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ही डिविडेंड दिया तो अपने पास एक्सेस फंड पड़ा रहेगा. अगर वो एक्सेस फंड कहां पे यूटिलाइज करना है अपने को मालूम नहीं है, आपका कोई डिसाइड नहीं हुआ, तो इट विल बी ओवर कैपिटलाइजेशन स्ट्रक्चर. नेचुरल ओवर कैपिटलाइजेशन भी तुमको फटका देगा मार्केट वैल्यू को. आया ना? और अपना बेसिक टारगेट क्या है? वैल्यू ऑफ द फर्म. आया ना? वी वांट टू गो फॉर हाई वैल्यू ऑफ द फर्म और मैक्सिमाइजेशन द वेल्थ. Yes or no? Furthermore, there are few dividend decision theories or dividend theories which put light on the complexities involved in dividend decision. These theories have been discussed under the following categories. 2 categories. पहला irrelevance theory. It is MM approach. दूसरा relevance theories में 2 है, Walters model, Gordon's model. एंड तीसरा जो थ्योरी था उसका नाम क्या था? लिंटर मॉडल. वो यहां पे नहीं दिया, वो देखते किसमें आता.
इररिलेवेंस में आया एमएम, रिलायंस में आया वॉल्टर्स और गॉर्डन. Meaning of dividend. Dividend is that part of profit after tax, PAT, which is distributed to the shareholders of the company. Further, the profit earned by the company after paying taxes can be used for पहला distribution of dividend or retaining as a surplus for future growth. देखा ना अपन ने. एक तो अपन क्या करेंगे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इफ वी अर्न हाई प्रॉफिट्स, विल पे अ हायर रेट ऑफ डिविडेंड, और we'll pay normal rate of dividend. We'll put the money as retained earning with us, and we will invest it in some other projects which are available with us. समझा? PAD distributed return, distributed as dividend, retained is retained earning. KD आपको मालूम है? KD आपको मालूम है ना? पक्का ना? KP भी मालूम है? प्रेफरेंस डिविडेंड. अपन के ही निकाल रहे. क्यों? मैं वही दे रहा हूं ना. आया ना? या ईपीएस निकालो, डीपीएस निकालो. क्या? अरे डिविडेंड पे आउट निकाल ही रहा हूं ना. दैट इज पेड टू द शेयर होल्डर्स. यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ पीएडी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. Shareholders can be up to 10. Equity in preference. तो पैट ही देते अपन, प्रेफरेंस को भी पैट में से ही देते. One of the important term to understand with regard to dividend is ex-dividend. Ex-dividend refers to the share that no longer carry the right to dividend. कैपिटल ग्रोथ जो मिलेगा वो मिलेगा. Ex dividend refers to the shares that no longer carry the right to dividend. Price at which the shares trade immediately on next day after the declaration of dividend is referred to as ex dividend price. मतलब आज तक डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड मिलने के तुरंत बाद जो प्राइस को वो शेयर ट्रेड होगा उसको क्या बोलेंगे अपन? एक्स डिविडेंड प्राइस. Price at which share trades immediately on the next day after declaration of dividend is referred to as ex-dividend price. सेपरेट मिलेगा ना, वो सेपरेट मिलेगा. डिविडेंड. फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड क्या है बेटा? जनरली डिविडेंड कैन बी ऑफ फॉलोइंग फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन some factors that will be discussed later. पहला कैश डिविडेंड. इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिविडेंड. कैश डिविडेंड, कैश हियर मीन्स चेक, कैश, वारंट, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और डायरेक्टली ईसीएस, बट नॉट इन काइंड. दूसरा शेयर रीपर्चेस. शेयर रीपर्चेस इज अ ट्रांजेक्शन इन विच कंपनी बाइज बैक इट्स ओन शेयर. बाय बैक ऑफ using corporate cash. This is done by a lot of corporates these days. The bought back shares as above can be classified as treasury shares which are kept for reissue in issuance in future, or cancelled share if they would be retired from the issue share capital. Share repurchase are also viewed as one form of dividend distribution. Keeping other things same, such as tax consideration, etc., the effect of cash dividend and share repurchase on the shareholder's wealth is same. For example, पढ़ो, suppose HM Limited has 1 crore equity shares outstanding and the purpose proposes to pay a dividend 50 per share totaling 50 crore of dividend distribution. Market price of one share is 200 on the date of declaration of dividend. Ex dividend हो गया. As an alternative, the company wishes to repurchase 50 crore equivalent share, then the company would be able to purchase 25 lakhs worth of share. सही बात है ना? 50 करोड़ देने वाले थे, 200 का शेयर है,
सो अपन कितने खरीद सकते हैं? 25 लाख. द इम्पैक्ट ऑन द शेयर होल्डर वेल्थ हु होल्ड्स 10 शेयर इज एक्सप्लेन एज फॉलो. वो सेम रहने वाली है ना? सेम रहेगी कि नहीं रहेगी? क्या पढ़ रहे हो तुम? 8.4 में पहली लाइन पढ़. कीपिंग अदर थिंग्स सेम. समझा ना? कम से कम क्या पढ़ रहे हो वो तो ध्यान दो. ऑप्शन 1, इन केस कंपनी पेज कैश डिविडेंड. पहला चीज, एक्स डिविडेंड प्राइस वुड बी 150 क्योंकि 50 रुपया क्या है? डिविडेंड. 200 इज मार्केट प्राइस. आया ना? Shareholder holding 10 share would be left with 2000 of worth of wealth after dividend is declared in form of cash as 500 and 1500 shares for, that is 150 into 10. Option 2, in case share repurchase is done, then in that case 25%, that is 25 lakh on 1 crore of the shares would be purchased, that is 4 share, and the amount paid would be 800. After share repurchase, the revised market price would be 200 only. Explain as follows. देखो, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना था? 200 करोड़ का. उसमें से शेयर रिपर्चेस हुए 50 के. सो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना रहा? 1.5. नंबर ऑफ शेयर लेफ्ट आफ्टर रिपर्चेस 75 लैक्स क्योंकि पहले 100 लैक्स थे. मार्केट प्राइस आफ्टर शेयर रिपर्चेस कितना है बेटा? इंटू 200. समझा गया? मतलब उसकी वर्थ उतनी ही रही, 2000 रुपये. पहले केस में इट वॉज 500 एज अ कैश डिविडेंड एंड 1500 एज शेयर प्राइस. दूसरे केस में कैश डिविडेंड नहीं है. पर 10 शेयर की वैल्यू क्या है? 200 रुपए के हिसाब से. सो 200 रुपए के हिसाब से क्या होगी? इतनी रही 2000. हाँ या ना? बस वही रही है. Hence, immediately after repurchase exercise done by the company, investor wealth would be 2000, represented by 800 on account of cash received on shares repurchase and 1200 on account of the market price of 6 share left after repurchase. क्या समझा? वही मिला ना? और अगर उसके पास 10 के 10 शेयर रहते, ऐसा नहीं रहने वाला, रिपर्चेस होने वाला है उसका. बट अगर होगा तो 200 इंटू 10. उसके बाद पहले केस में भी 2000 थी, दूसरे केस में भी. तीसरा, स्टॉक डिविडेंड, बोनस शेयर. बोनस शेयर भी डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ रिटेन अर्निंग. आया ना? इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर इन ल्यू ऑफ कैश डिविडेंड. अरे डिविडेंड देने की जगह बोनस शेयर देते थे. 5:1, 4:1, 3:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:2, 1:3, 1:4 हो सकता है ना? क्या होगा उससे? नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, वैल्यू कम होगी, लेकिन अल्टीमेटली एग्रीगेट वैल्यू. When the company issues new shares to its existing shareholder without any consideration, it is called as bonus share. Such shares are distributed proportionately, thereby remaining proportionate ownership of the company. सही बात है, retaining the proportionate ownership. क्यों? वो proportionate दे रहे ना, 5:1, 4:1. If a shareholder owns 100 shares at a time and 10% dividend is declared, then he will be having 10, मतलब 100 into 10 additional shares, thereby increasing the equity share capital and reducing reserves and surplus retained earnings. The total net worth is not affected by bonus issue as retained earnings are only capital. यही बोला था ना? Conditions of stock dividend or bonus share. Please read.
सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड लाइन है, उसको अंडरलाइन करो। सेकंड लाइन, हाँ, as per SEBI the bonus shares are issued not in lieu of cash dividend. So cash dividend is different story, बोनस शेयर इज डिफरेंट स्टोरी। देख, मेरे पास एक्सेस रिटर्न अर्निंग हो चुके हैं और मेरे को उसको क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। तब मैं क्या कर रहा हूं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। A bonus issue should be authorized by articles of association naturally and not to be declared unless all partly paid up shares have been converted into fully paid up shares. ये तुम्हारा अकाउंटिंग में हो चुका है, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। हुआ है क्या? हुआ है ना, कंफर्म हुआ है। ऐसा क्या कर रहे हैं? The company should not have defaulted in repayment of loan, interest and any other statutory dues. Bonus share are to be issued only from share premium and free reserves, जो कैपिटलाइज कर सकते हैं, and not from capital reserve on account of fixed asset revaluation, क्योंकि वो रियलाइज प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि वो रियलाइज प्रॉफिट नहीं है और इसकी अकाउंटिंग अपन कर चुके हैं। याद आ रहा है? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज नॉट द प्रॉफिट अर्न्ड, इट इज नॉट रियलाइज प्रॉफिट। सिक्योरिटी प्रीमियम मिल चुका है, इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट रिसीव्ड बाय अस। और जनरल रिजर्व वो तो कमा ही ले, कमा के बाजू में रखा है और वो एक्सेस है, तो उसी को अपन क्या कर रहे हैं, कैपिटलाइज कर रहे हैं। बट डोंट कॉल इट इन लिeu ऑफ कैश डिविडेंड एज पर SEBI। पक्का? Bonus shares are used by companies to prevent investor from selling its share at short-term capital gain is 15% and long-term capital gain is 10%, and the period of holding of bonus shares start from the date of issue of bonus share. In such scenario, an investor would not immediately sell bonus shares as they might lose 5% on account of taxation. अरे 111A 112A याद है ना, शॉर्ट टर्म STCG LTCG ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब वो रुकता है, नहीं मिला है तो लॉन्ग टर्म कन्वर्ट करते टाइम रुकता है वो, कि यार आज बेच के 15% टैक्स भरना पड़ेगा, कल बेचूंगा तो 5% भरना है कैपिटल गेन, मतलब 10% भरना। सो भाई मेरा 5% का बेनिफिट है, तो 5% इज ऑल्सो काउंटेड ना, ROI। आया ना? ये एक व्यू है। नहीं तो अपन ट्रेडर देख चुके, उनको कुछ लेना देना है क्या? नहीं, खरीदो बेचो। तो वो कर ही रहे, जुआ ही खेल रहे, तो क्या बचेगा? इतना सोच के थोड़ी करते। लेकिन 80% तो इन्वेस्टर रहेंगे जो सोच समझ के करते होंगे। आया ना? नहीं तो स्पेक्यूलेशन ही करना है तो सुबह खरीदने का, दोपहर को बेच देने का, इंट्राडे। आया ना? 2 रुपए से भाव बढ़ गया, बेच दो, इट इज इंट्राडे स्पेक्यूलेशन। वो 20% क्राउड की बात छोड़ो, थिंक फ्रॉम द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। This generally helps companies indirectly as their prices would not fall further due selling activity from investors aid. क्योंकि रुकेगा ना, रुकेगा मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ शेयर्स नहीं होगी बाजार में। रुकेगा मतलब बेचने के लिए नहीं आए, वो बेचने के लिए नहीं आ रहा मतलब माल का सप्लाई नहीं होगा, शेयर्स का सप्लाई नहीं होगा, तो नेचुरली शेयर की प्राइस नीचे जाना रुक जाएगा। सेलिंग वाला नहीं रहेगा और बाइंग वाले रहे तो भाव बढ़ने वाला। अपन ऐसा सोचते हैं कि कम से कम स्टेबिलिटी तो मेंटेन रहेगी। एडवांटेज ऑफ स्टॉक डिविडेंड, देयर आर मेनी एडवांटेजेस both to the shareholders and the company. Some of the main advantages are listed as under. To shareholder, टैक्स नहीं है ना इसके ऊपर, जब बेचेगा तब देगा।
on stock dividend received from domestic company as it is not treated as dividend but capital asset under Income Tax Act 1960. Policy of paying fixed dividend per share and its continuation even after declaration of stock dividend will increase total cash dividend of the shareholder in future. Naturally, मेरे पास 200 शेयर है, अभी 25% मिलके 250 हो गए. अभी फिक्स डिविडेंड दे रही मेरी कंपनी, इसकी वजह से तो बोनस दे रही है ना, क्योंकि रिटर्न अर्निंग बढ़ रहे. पर मेरा कैश इनफ्लो बढ़ेगा ना. 200 शेयर पे जो डिविडेंड मिलने वाला था अभी आगे चल के 250 पे मिलेगा. Bonus share improves liquidity in the hands of shareholder as bonus share lead to breaking down the higher price share into lower priced shares and hence give a choice to the shareholder to sell some of the lower price share and get some liquidity. बड़ा शेयर बेचने से बेहतर है टुकड़े वाले एक शेयर बेच दिया तो मेरा आज का जरूरत कंप्लीट होगा और मेरे पास उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे या उससे भी ज्यादा. मतलब मेरे दिल को सुकून. 1000 शेयर की जगह मेरे को 1400 हो गए थे तो मैं क्या सोचा 200 बेच दिए, अभी 1200 है ना, और मेरे को इमीडिएट कैश इनफ्लो मिल गया यूज करने के लिए. टू कंपनी क्या बेटा कंजर्वेशन ऑफ कैश फॉर मीटिंग प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज. क्यों? अरे उसको डिविडेंड ही दे रहे हैं ना, लेकिन इन फॉर्म ऑफ कैश दे रहे हैं क्या? अभी नहीं. इन फॉर्म ऑफ क्या दे रहे हैं? बोनस शेयर्स. तो सामने वाले की भी नीड पूरी हो रही है और मेरी कंपनी का कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा. कैश इज नॉट गोइंग आउट. सुटेबल इन केस ऑफ कैश डिफिशियंसी. सही बात है कि नहीं? एंड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द लेंडर टू पे कैश डिविडेंड. ठीक है, शेयर होल्डर भी खुश. चलना 10 के बदले 3 शेयर मिल गए ना, 100 के बदले 30 मिल गए. क्या हुआ? कैश डिविडेंड नहीं मिला तो नहीं मिला, बट कंपनी के पास कैश नहीं है, ब्लॉक्ड है, रिस्ट्रिक्शन डाले हुए हैं. तो आई मेंटेन माई शेयर होल्डर एंड आई मेंटेन कैश बैलेंस. समझा? लिमिटेशन ऑफ स्टॉक डिविडेंड क्या बेटा? टू शेयर होल्डर. देख पहले बेनिफिट्स हो गए, एडवांटेजेस, अभी लिमिटेशन. टू शेयर होल्डर्स टू कंपनी. पढ़ो. स्टॉक डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर. नेचुरली होने ही नहीं वाला, भाव कम होंगे, मैचअप हो जाएगा. एंड देयरफॉर इट हैज नो वैल्यू फॉर देम. This is because the declaration of stock dividend is the method of capitalizing past earning of the shareholder and is formal way of recognizing earning which the shareholder already own. जो उसके बाप का है. सही बात है ना? It merely divides the company's ownership into large number of shares. Certificate. James Porterfield regards stock dividend as division of corporate pie into a larger number of pieces. क्योंकि वो केक उनका ही है, सिर्फ मैंने रिटर्न अर्निंग करके रखा था, अभी वापस उसके बारीक बारीक पीस करके उनको बांट दिया. वैसे उनकी ओनरशिप है ना उसके ऊपर, यार ओनर वो देना, ओनर है. स्टॉक डिविडेंड डज नॉट गिव एनी एक्स्ट्रा और स्पेशल बेनिफिट टू द शेयर होल्डर. इट्स प्रोपोर्शनेट ओनरशिप इन द कंपनी डज नॉट चेंज एट ऑल. क्यों? अरे जैसे मेरे 100 के 130 हुए, तेरे भी हुए, इसके भी हुए, इसके भी हुए, तो अपनी स्टॉक ओनरशिप क्या रहेगी कंपनी में? एक ही रहेगी ऑब्वियसली. स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर क्रिएट्स अ फेवरेबल साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑन द शेयर होल्डर एंड इज ग्रीटेड बाय देम ऑन द ग्राउंड दैट इट गिव्स इंडिकेशन ऑफ द कंपनीज ग्रोथ. सिर्फ वो खुश क्यों होंगे? चलो ठीक है, कंपनी ग्रो कर रही है, रिटेन अर्निंग को कन्वर्ट तो कर रही है कैपिटल बेस में. To company, stock dividend are costlier to administer than cash dividend. It is disadvantageous if the periodic small stock dividend are declared by the company as earning. क्या समझा? ये नहीं समझा मेरे को.
उसका एडमिनिस्ट्रेशन टफ है। वैसा नहीं बोला उसने, स्टॉक डिविडेंड टिपिकली अगर मैं एक बार ही 100 शेयर के बदले 25 शेयर का डिविडेंड दे रहा हूं, स्टॉक का डिविडेंड एक ही बार खर्चा होगा, तो मेरे को मैकेनिज्म रन नहीं करना पड़ेगा। शेयर होल्डर की लिस्ट निकालो, उनके पास की होल्डिंग निकालो दिन की, फिर उस हिसाब से उनको बोनस दो, फिर वो उनके डीमैट में डालो, ये तकलीफ है कि नहीं मेरे को? इट इज कॉस्टली। अगर हर साल में कर रहे होंगे तो वो चीज तेरे को वापस वापस करनी पड़ेगी, उसका खर्चा आएगा कि नहीं आएगा? तो यही बोला है, इट इज डिसएडवांटेजियस इफ पीरियोडिक स्मॉल स्टॉक डिविडेंड आर डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी एज अर्निंग। तुम करना है ना 2-3 साल में एक आध बार करो, समझा क्या? हर बार तुम उठोगे 6 महीने बाद बोलोगे चलो स्टॉक डिविडेंड बोनस शेयर, कॉस्ट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? Significance of dividend policy. Dividend policy of the firm is governed by पहला long-term financing decision. As we know that one of the financing option is equity. Equity can either be raised externally through the issue of new equity shares or can be generated internally through retained earning. For equity, retained earning are preferable because they do not involve any flotation cost. क्यों? Issue expenses नहीं है। But whether to retain or distribute the profit from the basis of this decision, whether to retain or distribute the profit forms the basis of this decision. Further, payment of cash dividend reduces the amount of funds required to finance a profitable investment opportunity, hereby restricting its financing option. In this background, the decision is based on the following: whether the organization has opportunities in the hand to invest the profit if retained, जो मैंने पहले ही बोला था, प्रॉफिट रख रहे तो बेटा अपने पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है क्या? दूसरा, वेदर द रिटर्न ऑन सच इन्वेस्टमेंट ROI विल बी हायर देन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ शेयर होल्डर, दैट इज की। समझा क्या भाई? अपन रिटर्न कर रहे, ठीक है, अपने पास अपॉर्चुनिटी है क्या? चल है, उसका ROI ज्यादा है क्या की से? की है एक्सपेक्टेशन 14% और ROI 11%, और ऊपर से की क्या है? आफ्टर टैक्स है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन डिसीजन सेकंड, क्या बेटा? पहला डिसीजन कौन सा था? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल। अपन डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड करते टाइम कौन से फैक्टर्स कंसिडर करते हैं, कौन से फैक्टर्स का कॉग्निजेंस लेते, कौन सा फैक्टर्स का सोच विचार करके अपन पॉलिसी डिसाइड करते, ये अपन देख रहे। सिग्निफिकेंस ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, पहला था लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन, जो मैंने बताया, रिटर्न अर्निंग को कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, तो अपने पास अपॉर्चुनिटी है क्या और उसका ROI KE से ज्यादा है क्या? सेकंड, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन डिसीजन, ये सोचेंगे। अंडर दिस डिसीजन वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम as to what amount of dividend shall be distributed, that is dividend payout ratio। क्या बोला था? DP आएगा, बोला था कि नहीं बोला था? तुमने बोला सर क्यों, सर क्यों, सर क्यों? ये तो आने वाला ना, क्योंकि ये बेस अपन डिविडेंड ही सीख रहे, तो डिविडेंड पे आउट तो आएगा ही। डिविडेंड पे आउट मतलब DPS अपॉन EPS। पक्का? तो ये EPS क्यों बोल रहे हो? अरे पगले, मार्केट प्राइस के हिसाब से अपन कितना डिविडेंड दे रहे,
डीपीएस कैसे निकलता? डिविडेंड पे आउट रेशो कैसे निकलते? क्या क्या क्या? पक्का? श्योर? तो कैन आई रिवर्सिफाई दैट थिंग? डीपीएस को मैं अगर डिवाइड किया तेरे हिसाब से इससे, डीपी रेशियो से, तो विल इट गिव मी द मार्केट प्राइस? तुमने याद आ रहा है क्या तुमको? DP ratio in relation to market price of the share, MPS. This decision based on the following. Because of the market imperfections and uncertainty, shareholders give more importance to near dividend than future dividend and capital gain. Payment of dividend influences the market price of the share directly. Higher dividend increases the value of share and low dividend decreases it. A proper balance has to struck between these two approaches. समझा क्या? When the firm increases its return earning, shareholder dividend decreases. Consequently, market price is affected. Use of retained earning to finance profitable investment increases the future earning per share. फ्यूचर अर्निंग की वजह लोगों को आज चाहिए नियर अर्निंग. आज क्या दे रहा भाई? 2 साल बाद तू मेरे को पंच पकवान खिलाएगा और अभी तू मेरे को आधा पेट रखेगा. सही है क्या? 2 साल बाद मेरे को पंच पकवान नको, मेरे को वो टाइम पे पेट भर खाना दे बहुत हो गया, लेकिन आज मेरे को आधा पेट मत. ये सोच हो गई है मार्केट की. इसलिए जैसे डिविडेंड बढ़ता है मार्केट प्राइस बढ़ जाती है. डिविडेंड कम हो गया, मार्केट पे निगेटिव इंपैक्ट जाएगा. नेचुरली मार्केट प्राइस क्या होगी? विल गो डाउन. कोई दिक्कत? This is because shareholder expect that profitable investment made by the company may lead higher return for them in future. On the other hand, increase in dividend may cause the firm to forego investment opportunities for lack of fund and thereby decrease the future earning per share. Thus, management should develop a dividend policy which divides net earning into dividends and return earning in an optimum way so as to achieve the objective of wealth maximization for shareholders. Such a policy will be influenced by the investment opportunities available to the firm and the value of the dividend as against the capital gain to the shareholder. समझा क्या? मतलब दोनों को भी अपने को अचीव करना है. मार्केट वैल्यू भी बढ़ानी है और फ्यूचर अर्निंग्स कैसे ज्यादा डेवलप होंगे ये बारे में भी सोचना है. दैट इज द क्रूशियल पार्ट which have to be performed by the relationship between return earning and growth. It can be illustrated with the help of the following equation. Growth is equal to BR. B is retention ratio, R is rate of return on investment. ग्रोथ रेट क्या है बेटा? रिटेंशन रेशियो इंटू रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ठीक है डार्लिंग? इट्स BR. Let us understand this relationship between return earning and growth with the help of the following example. It's Dr. B.R. Ambedkar. Yes or no? पक्का? हमेशा याद रखो, इट्स ग्रोथ. इट्स ग्रोथ. पक्का? So growth of the rate of the firm is retention and rate of return. अगर तुमको इसको RR बोलना होगा तो भी तुम
तुम्हारे सोच से लिख सकते हो, बट यहाँ पे B इंटू आर है. B इज रिटेंशन रेशियो एंड R इज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. Let us understand the relationship between return earning and growth with the help of following example. पढ़ो. Example 1. Suppose there are two companies, namely A and B, having capital employed of 50 lakhs in terms of equity share, 100 each, okay, are earning at the rate 20%. ये ब्रैकेट गलती से डाला है. Both have the same capital structure and same ROI, but different dividend policy. A distributed 100% of its earning, whereas B distributes only 50%. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है. Now considering the other things to be remain same, the position of the both companies during the next year will be earning कितनी है 20%. So 10 लाख. अपन डिविडेंड बांट रहे पूरा, दूसरे इसमें आधा रिटेन अर्निंग है. Yes or no? So current year existing capital कितना हो गया 50 लाख. टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 50 लाख, अर्निंग 20%. अभी यहाँ पे दिक्कत क्या है, 50 लाख का तो कैपिटल है, लेकिन रिटेन अर्निंग इसमें नील था, इसमें कितना है 5 लाख. अभी मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया 55 लाख. तो नेक्स्ट ईयर माई अर्निंग विल बी 1 लाख मोर. तो 5 लाख में कम होगा ना मैं, आया ना. मतलब फ्यूचर ग्रोथ कहां पे हो रही है, सेकंड ऑप्शन. Hence, with the help of the above example, it is easy to understand how return earning lead to growth. क्या समझा? रिटेंशन रेशियो इनटू रेट ऑफ रिटर्न. रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20%. क्या बात करें सच में. एक ने 5 लाख बांटे, 5 लाख पास रखे. बीआर का फॉर्मूला कैसे यूज करेगा आप? वो तो 100 वाला, 50 बोला ना तुमने. हाँ तो 50% के 10%. अपना इन्वेस्टमेंट का 10 लाख, फिर 10% 1 लाख रुपए. प्रीवियस ईयर इनकम था 10 लाख. वर्ड गलत इस्तेमाल. और ये जो 10% आया वो 10 लाख पे इनकम बढ़ा है, मतलब नेचुरली क्या हुआ है 1 लाख का इनकम बढ़ा है. सो 10 से 11 हुआ. सो रिटेंशन इज 50% and rate of return is 20%. So 50 into 20%, it will be 10%. 50% के 20%, मतलब 50 into 20 नहीं, 50% के 20%. So 10. So it is my growth. 10 लाख का इनकम कितना ग्रो हुआ 11. Can I show the retention ratio in 1/2, 1/3? ज्यादा आसान होगा ना. मेरा रिटेंशन है 1/2 into 20%, नेचुरली 10%. ये 50% के 20%, ये समझना दिक्कत जाता है ना. लोग क्या करेंगे, BR 50 into 20, 100% सोचेंगे.
1000, वैसा नहीं है, उसके 20%। मैं वही बोल रहा था, 1/2 लिख सकते, 0.5 जैसे तू बोल रहा, प्रॉब्लम में आ सकता है इसलिए बोला। भाई गए में तुम सीधा मल्टीप्लाई करके कर दोगे, तकलीफ हो जाएगी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड डिसीजन, प्लीज रीड। द डिविडेंड पॉलिसी इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो अपनी डिविडेंड पॉलिसी थी, कौन सी डिविडेंड पॉलिसी, कौन सी ऊपर आओ, कौन सी थी? अरे 3 तरीके की थी ना पॉलिसी, कौन सी थी? अरे फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड भाई, कैश, रिपर्चेस और रखा। सिग्निफिकेंस ऑफ डिविडेंड पॉलिसी में 2 कंसिडरेशंस है, पहला लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और दूसरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सही बात है ना, जो अपन ने देखा, जिसमें अपन ने रिलेशन भी देखा, हर एक चीज देखी। अभी अपने क्या देखना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड डिसीजन। डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड पता है तुमको, जिससे डिमांड चेंज होती है, याद आ रही है? डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, जिससे जिसका प्रेशर किसके ऊपर पड़ेगा, डिमांड के ऊपर, और जिससे जो चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज होगी, उसको क्या बोलते हैं अपन, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। वैसे ही यहाँ पे क्या देख रहे हैं अपन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड डिसीजन, जिनसे डिविडेंड डिसीजन में चेंजेस होगा, डिविडेंड में चेंजेस। डिविडेंड पॉलिसीज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, नेचुरल है, भीख मंगा खुद क्या खाएगा, दूसरे को क्या देगा। If the business is in requirement of fund, then return earning could be a good source. The reason being the saving of flotation cost and prevention of dilution of control, which happens in case of new issue of equity shares to the public. मतलब दूसरा शेयर इशू करके पैसा खड़ा करने से बेहतर है, डायल्यूशन ऑफ इक्विटी करने से बेहतर है कि अपन रिटर्न अर्निंग यूज करते। दूसरा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। If the financing requirement are to be executed through debt, relatively cheaper source of finance, then it would be preferred to distribute more dividend. On the other hand, if the financing is done through the fresh issue of equity share, then it is better to use the return earning as much as possible. नया डाइल्यूशन करने से बेहतर है रिटर्न का यूज करो। अगर डेट रहा तो टेंशन मत लो, दो डिविडेंड। क्यों? डेट इज ए चीपर सोर्स। Capital structure and optimum debt equity ratio should be considered for the dividend decision. Stock price here means market price of the share. Generally higher dividend increases market value of shares, बोला था कि नहीं, and low dividend decreases the value. Investment opportunities in hand, the dividend decision is also affected if there are investment opportunities in hand. In this situation company may prefer to retain more earning. क्यों? अपने पास दिख रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना जरूरी है। Trend of industry, the investor depend on the some industry for their regular dividend income. Therefore, in such a case, the firm have to pay dividend in order to survive in the market. Expectation of the shareholder can be categorized into 2 categories: those who invest for regular income and those who invest for growth. Generally, the investor prefer current dividend over the future growth. कुछ लोग ग्रोथ के लिए डालते हैं, कुछ लोग अभी पेट भरने के लिए। लीगल कंस्ट्रेंट, सेक्शन 123 of the Companies Act 2013, which provides for the declaration of dividend, states that the dividend shall be declared or paid by a company or for any financial year only out of the profits of the company for that year arrived at after providing for depreciation in accordance with the relevant provisions, or out of the profits of the company for any previous financial year or years arrived at or providing for depreciation in accordance with the relevant provisions of the remaining undistributed, or out of both, out of money provided by the central government or state government for the payment of dividend by the company
in persons of a guarantee given by the that government. क्या समझा? ABCD. पहला ये साल के प्रॉफिट में से आफ्टर डिप्रिसिएशन, दूसरा पिछले साल के प्रॉफिट में से आफ्टर डिप्रिसिएशन जो आएगा उसमें से भी दे सकता, तीसरा दोनों में से दे सकता, और चौथा अगर गवर्नमेंट ने तुमको मनी प्रोवाइड किया है डिविडेंड देने के लिए बेटा उसमें से दे सकते हो. इट मे बी नोटेड दैट व्हाइल कंप्यूटिंग द प्रॉफिट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अनरियलाइज्ड गेन, notional gain or revaluation of asset or any change in the carrying amount of an asset or of liability or measurement of the asset or the liability at the fair value shall be excluded. समझा क्या? मतलब जो रियलाइज प्रॉफिट है उसमें से ही दो, जो रियलाइज नहीं है वो टैक्सेशन. यू नो टैक्सेशन मालूम है ना? पहले डीडीटी था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. क्या था? डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. कौन भरता था? कंपनी भरती थी, एग्जम्प्ट रहता था. शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड क्या रहता था? एग्जम्प्ट. अभी शेयर होल्डर के हाथ में क्या है? पक्का? श्योर? खत्म. देखो, बिफोर 1 April 2020 as per section 115 of the Income Tax Act 97, dividend was subject to dividend distribution tax DDT in the hands of the company. Dividend on which DDT was paid was exempted in the hands of shareholder under section 10 subsection 34. अभी ऐसा नहीं. However, as per the amendment made by Finance Act 2020, the exemption of 1034 shall not be applied to the dividend received on or after 1 April 2020 and the dividend income from the share as an investment shall be taxable under the head income from other sources at the applicable rate, slab rate. In nutshell, dividend would be taxable in the hands of the recipient or investor. Practical consideration in dividend policy. As discussion on the internal financing ultimately turns to a practical consideration which determine the dividend policy of the company. The formulation of dividend policy depend upon the answers of the following question. दो क्वेश्चन वैसी. पहला, whether there should be a stable pattern of dividend over the years or whether the company should treat each dividend decision completely independent. The practical consideration in the dividend policy of the company are briefly discussed below. पहला, फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द कंपनी. अगर कंपनी को आगे चल के इन्वेस्टमेंट करनी है और उनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है फ्यूचर ग्रोथ के लिए, तो डेफिनेटली कंपनी विल गो फॉर रिटेन अर्निंग्स और डिविडेंड क्या देगी? कम. चलो, फाइनेंशियल नीड्स ऑफ मनी. रिटेन अर्निंग कैन बी अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर क्रिएटिंग प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज. यही बोला था ना as we discussed earlier. When the rate of return of a company is greater than the return required by the shareholder, it would be advantageous for the shareholder to reinvest their earning. ठीक है ना? अगर शेयर होल्डर के एक्सपेक्टेशन से अपना रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा रहा देने का, तो शेयर होल्डर को लिए बेनिफिशियल रहेगा, वो वापस री इन्वेस्ट करेंगे. रिस्क एंड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन increases if the company raise capital through issue of new shares where flotation costs are involved. In this respect, the comparison between growth companies and mature companies has given as follows. Mature company and growth company पढ़ो. उसके बाद बी पॉइंट है कंस्ट्रेंट इन पेइंग द डिविडेंड. लीगल है लिक्विडिटी, एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, पे आउट. देन कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी. पे आउट पॉलिसी में दी पहली पॉलिसी कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी जो अपन पहले ही पढ़ चुके. स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, इनमें क्या फर्क है बताऊंगा. देन लिंटर्स मॉडल यहां पे आया क्या? उसके बाद इररिलेवेंस थ्योरी और रिलेवेंस थ्योरी. कोई दिक्कत डार्लिंग? पक्का? चलो पढ़ो. पढ़ो मैच्योर कंपनी और ग्रोथ कंपनी.
ज्यादा पे आउट रेशियो रहेगा, आया ना। उनका लो पे आउट रेशियो रहेगा, क्यों, उनको ग्रोथ करनी है। शेयर प्राइस क्या है बेटा इनकी, सेंसिटिव रहेगी डिविडेंड चेंज को लेके, क्यों, अरे उनका इन्वेस्टमेंट कम है ना, उनका इन्वेस्टमेंट क्या है, कम है। ग्रोथ कंपनी का क्या है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। वहां पढ़ के कौन एक्सप्लेन करेगा। अरे 3 तो पॉइंट है, करना है। मैच्योर कंपनी जो है उसका जो डिविडेंड पे आउट है वो ज्यादा रहेगा। मैच्योर कंपनी में इन्वेस्टमेंट कम है उनकी, इसलिए उनका डिविडेंड पेमेंट क्या रहेगा, ज्यादा। दूसरी जो ग्रोथ कंपनी है उसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ज्यादा है, दे विल थिंक फॉर इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर, और ये कंपनी डिविडेंड क्या करेगी, कम पे करेगी। अगर मैच्योर कंपनी ने डिविडेंड कम पे किया तो क्या होगा, उसके शेयर प्राइस में इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि वो सिर्फ कमाने के लिए लोगों ने इन्वेस्ट किया। दूसरे कंपनी में लोगों ने ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट किया, आप कैसा बोला। अगर उन्होंने ज्यादा डिविडेंड बांटा तो नेचुरली लोग डरेंगे, इन्होंने बहुत ज्यादा डिविडेंड बांटना चालू कर दिया, कैपिटल ग्रोथ चाहिए ना लोगों को। थर्ड क्या दिया है, साइड में रखेंगे, कहाँ पे, मैच्योर कंपनी, मतलब सब डिविडेंड करके नहीं बांटेंगे, वो भी थोड़ा पैसा साइड में रखेगी। अनइवन सर्कमस्टेंसेस में, इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ी तो उस चीज की। आगे, these companies increases the amount of dividend gradually as the profitable investment opportunity start falling। समझा क्या, आगे चल के वो भी डिविडेंड का रेट बढ़ाते हैं। क्यों, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई ना, अभी स्टेबल जाएंगे ना आगे। कंस्ट्रेंट ऑफ पेइंग, हर बार नई अपॉर्चुनिटी कहां से आएगी, हर बार कैसे आएगी न्यू अपॉर्चुनिटी इमीडिएटली, इज इट फिजिबल। कंस्ट्रेंट ऑन पेइंग डिविडेंड, लीगल पॉइंट क्या बेटा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड डिसीजंस। प्लीज सी द पॉइंट नंबर 9 अंडर हेडिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड डिसीजन, जो अपन ने ऊपर देखा था। क्या, टैक्सेशन नाम का एक पार्ट है। एट वाला आना चाहिए था, ठीक है, लीगल कंस्ट्रेंट। लिक्विडिटी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड mean outflow of cash, ability to pay dividend depend on cash and liquidity position of the firm. A mature company does not have much investment opportunities, nor its fund tied up in any permanent working capital, and therefore has a sound cash position. A growth oriented company, in spite of having good profits, needs fund to expand its operation and permanent working capital, and therefore it is less likely to declare dividend. समझा क्या डार्लिंग, कंस्टेंट मतलब अर्थड़े बोल सकते हैं, सीधा सीधा बोला जाए तो बाउंड्रीज विद इन विच यू विल हैव टू वर्क, लिमिटेशन बोल सकते हैं, बट दीज आर बाउंड्रीज, इसके बाहर नहीं जा सकते। तो लक्ष्मण रेखा,
समझा क्या भाई? अपने पास 2 करोड़ ही है, 3 प्रोजेक्ट नहीं चालू कर सकते। तू सेटल मार, क्या करना है देख। एनपीवी मैनेज हो रहा होगा, आरओआई अच्छा हो रहा होगा, उसमें से भी ऑप्टिमम यूटिलाइज कर, मैक्सिमम रिटर्न आने चाहिए। ये क्या है? कंस्ट्रेंट, कंडीशन, रिस्ट्रिक्शन, बाउंड्रीज, लिमिटेशंस, हर एक चीज आएगी इसमें। सही बात है। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, ये भी कंस्ट्रेंट है फॉर पेइंग डिविडेंड। क्या? बाय पेइंग लार्ज डिविडेंड, कैश पोजीशन इज अफेक्टेड, सो इफ द न्यू शेयर्स हैव टू बी इशूड to raise the fund for financing investment program, and if the existing shareholder cannot buy additional share, then their control is halted, क्योंकि बाहर के लोगों को पास जाना पड़ेगा। In such a situation, payment of dividend may be withheld and earning are utilized for financing the firm's investment opportunities. Okay. Fourth, investment opportunities. If investment opportunities are inadequate, it is better to pay dividend and raise the external fund whenever necessary for the opportunities. तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, पैसा रखा ही को रहा, दे दे, बांट दे। अपॉर्चुनिटी है, बाद में वापस इकट्ठा कर। नहीं, अगर आज तेरे पास पैसा है और अपॉर्चुनिटी है तो तू तो रिटेन ही करेगा ना, तो तू बांटेगा आगे चल के। आज नहीं है, बांट देगा, और आगे चल के जरूरत पड़ी तो यू कैन रेज। पेआउट पॉलिसी डार्लिंग, ले क्या पेआउट पॉलिसी? पेआउट पॉलिसीज कैन बी मेंटेन बाय फिक्सिंग द अमाउंट और रेट ऑफ डिविडेंड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी। पेआउट पॉलिसीज कैन बी मेंटेन बाय फिक्सिंग द अमाउंट और रेट ऑफ डिविडेंड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द अर्निंग ऑफ द कंपनी। कितनी भी होंगे, इतना रेट से अपन डिविडेंड देंगे। दिस पॉलिसी में इंक्लूड कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी। Shareholders are given fixed amount of dividend in respect of actual earning. The amount of dividend may increase or decrease later depending on the financial health of the company, but it is generally maintained as a considerable for a considerable period of time. समझा क्या? DPS देख, कांस्टेंट है क्या? देख यहाँ पे इतना दिया 2-4 साल, फिर थोड़ा बढ़ाया, फिर 2-4 साल दिया, फिर बढ़ाया, फिर 7-8 साल दिया। नहीं, चॉइस ऑफ द कंपनी। तेरे जेब में पैसा रहेगा बाट, नहीं रहेगा मत बाट। लेकिन नहीं, लेकिन तू बांटते टाइम कॉन्स्टेंटली बांटना। इट इज कॉन्स्टेंट डिविडेंड पॉलिसी। तेरे जेब में 2 करोड़ है, लेकिन तू कॉन्स्टेंटली अगर 50 लाख की डिस्ट्रीब्यूट करती है 85 लाख, अगले साल तू 2 करोड़ नहीं कमा पाई, तू 1.5 करोड़ कमा पाई। क्या? 85 लाख देने का नहीं, अपन ने डिसाइड किया है ना कि भाई मैं लॉन्ग टर्म 5 करोड़ के शेयर से 10% से मैं 50 लाख बांटूंगा, तो मैं उतने बांटूंगा। नहीं, अगर अपन कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे तो शेयर होल्डर भी वो सोचेंगे ना कि यार इनकी पॉलिसी कांस्टेंट है। उनको भी उतना समझता है ना। अगर आगे चल के 2-3 साल अर्निंग वो लेवल पे नहीं रहे तो पिछला जो रिटेन अर्निंग है उससे तू बांट सकती है ना, क्योंकि तेरे को मालूम है लीगल रिस्ट्रिक्शन क्या है, अर्न टुडे और अर्न प्रीवियसली और सिक्योरिटी प्रीमियम, बट नॉट फ्रॉम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। याद आ रहा ना? सो अपनी अपना मूड है। ये सही था। वो लाइन ऊपर नीचे हो गई थी ना, तो मैंने लाइन एडजस्ट किया। नहीं, फिर भी नीचे हो गई लाइन। अब सही है। वो नीचे आ गया था ना चार्ट में। To maintain the constant dividend amount, it is necessary to create reserve, like dividend equalization reserve fund, earmarked by marketable
securities for accumulation of surplus earning and to use it for paying dividend in those years where the company's performance is not good. अभी उसके जेब में 1.5 करोड़ पड़ा, 2 करोड़ थे, उसने 50 बांटा, 1.5 करोड़ जेब में, लेकिन वो 1.5 करोड़ ही रहेगा। तो उसको ईयर वर्क फंड करके रखना पड़ेगा, उसको रिजर्व का नाम देना पड़ेगा। कौन सा बेटा? डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व। और वो जो 1.5 करोड़ है वो इन्वेस्ट करेंगे अदर सिक्योरिटीज में कि उससे भी अर्निंग आए, और अपने को जो 50 लाख का डिविडेंड देने का टारगेट है हर साल का, वो पूरा होता है। तो जो 1.5 करोड़ पर है उसको तू करेगी क्या? एक तो तेरे पास अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए नया प्रोजेक्ट की। अब नया प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी तो तू क्या पढ़ने देंगी क्या पैसा? उसके ऊपर तू अर्निंग का एक्सपेक्ट नहीं करेगी। एक लॉजिक है, वो पैसा किसका है? इफ दे आर एक्सपेक्टिंग ऑन दैट अमाउंट, तेरे को क्या लगता है तेरे जेब में पड़ा पड़ा वैसे ही बढ़ेगा क्या? तो बढ़ाने के लिए तेरे को कोशिश तो करना पड़ेगा ना। अच्छे दिन है बाजू में रखो, इन्वेस्ट करो और कमाओ, और बुरे दिन के टाइम इसको इस्तेमाल। समझा क्या? दिस पॉलिसी ट्रीट्स कॉमन शेयर होल्डर एट पार with preference shareholder without giving them any preferred opportunities within the firm. प्रेफरेंस डिविडेंड जैसे देते उसी की तरीके से अपन रेट फिक्स करेंगे और देते रहेंगे इक्विटी शेयर होल्डर। It is preferred by a person and institution that depends on dividend income to meet their living and operating expenses. मतलब तुम बुढ़ा हो गए, मतलब तुम्हारा एज बढ़ गया, अभी हाथ नहीं काम करते, पैसा है पड़ा, लेकिन मेरे को प्रॉपर सोर्स चाहिए, ऊपर से रिस्क भी कम चाहिए, और अर्निंग मेरे को श्योर शॉट अच्छी चाहिए। तो अब मैं ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा जो फिक्स डिविडेंड पॉलिसी पे वर्क करती है, ताकि वो मेरे को फिक्स डिविडेंड दे 2-3 साल। मार्केट का महंगाई बढ़ गया तो उनका भी रेट बढ़ेगा, वापस मेरे को चालू हो जाएगा, पर मेरा ब्रेड एंड बटर चलते रहेगा ना, और मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू धीरे धीरे वो भी ग्रो होती जाएंगी। समझा? कंपनीज दैट यूज कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी, देयर डिविडेंड फ्लक्चुएट विथ अर्निंग इन शॉर्ट टर्म। इनिशियली तो होगा ना, स्टेबल होते होते। नाउ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी देखिए, कांस्टेंट था, 2-4 साल कॉन्स्टेंटली दिए, फिर और बढ़ा के 2-4 साल कॉन्स्टेंटली दिए, फिर और बढ़ा के 7-8 साल कॉन्स्टेंटली दिए, अभी स्टेबल। स्टेबल किसको बोलते हैं? ये बहुत मस्त चीज है एक जगह पे। द रेशियो ऑफ डिविडेंड टू अर्निंग इज नोन एज पे आउट रेशियो। सम कंपनीज फॉलो द पॉलिसी ऑफ कांस्टेंट पे आउट रेशियो। डिविडेंड अमाउंट कांस्टेंट नहीं रहेगी, हाँ अर्निंग पे वो भी। मतलब मैं अगर 2 करोड़ कमा रहा हूं और मेरा पॉलिसी है कि उसमें से 40% मेरे को शेयर होल्डर को बांटना है, तो मैं बांटूंगा 80 लाख। अगले साल मैंने 1 करोड़ कमाया, मेरा पे आउट रेशियो क्या है? वही दिया एक। द रेशियो ऑफ डिविडेंड टू अर्निंग is known as payout ratio. Some companies follow a policy of constant payout ratio, that is paying fixed percentage on net earning every year. To quote from page number 74 of the annual report 21 of the Infosys Technology Limited, the dividend policy is to distribute up to 30% of the consolidated profits after tax of the Infosys group as dividend. Infosys की डिविडेंड पॉलिसी है। अर्निंग ज्यादा हुए तो ज्यादा डिविडेंड, अर्निंग कम हुए तो, बट वॉट एवर अर्निंग वी आर गोइंग टू अर्न 30% आफ्टर टैक्स। Contrary to this, Warren Buffett मालूम है, द बिग इन्वेस्टर, among the richest person of the world, says
we will either pay a large dividend or none at all. If we can't obtain more money through reinvestment of those funds, there is no logic to regularly paying out 10% or 20% of earning as dividend every year. क्योंकि वो ग्रोथ मॉडल पे बिलीव करता है. रीइन्वेस्ट. अगर ज्यादा मिला तो ठीक है, उसमें से कुछ ना कुछ देंगे, बट हर साल देने का वायदा हम नहीं कर सकते. कभी कभी इन्वेस्टमेंट से वो रिटर्न नहीं आएगा तो हम हमारी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करके तेरे को पैसे नहीं देंगे ना. कभी कभी रुकना पड़ेगा. समझा? Such a policy as mentioned by Warren Buffett, and with that the amount of dividend fluctuate in the direct proportion to earning. If the company had a 40% payout ratio, then 40% of every rupee of net earning will be paid out. If a company earns 2 rupee per share, dividend per share will be 80 paisa, and if earns 1.5 per share, dividend per share will be 60 paisa. मतलब we will either pay large dividend or none at all if we can't obtain more money through reinvestment of those funds. There is no logic to regularly paying 10% or 20% of earning as dividend every year. ये बोल रहा है वॉरेन बफेट. पक्का? खत्म. वही है. Hence, a policy is related to the company's ability to pay dividend. For losses incurred, no dividend shall be paid. Internal financing with return earning is automatic. At any given payout ratio, the amount of dividend on any addition to return earning increases with the increased earning and decreases with the decreased earning. This policy has a conservative approach and provides a guarantee against over or underpayment. Naturally, company that uses a stable dividend policy based dividend on long-term forecast of a suitable sustainable earning and increased dividend when the earning have increased to a substantially higher level. मतलब तू तेरा कांस्टेंट डिविडेंड कब बढ़ाएगा? जब तेरी अर्निंग वो लेवल पे चली जाए, फिर तो स्टेबल अर्निंग पे जाएगा, फिर तो तू स्टेबल डिविडेंड दे सकता. द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ टारगेट पे आउट रेशियो इट्स कवर्ड अंडर द लिंटर्स मॉडल एज बी. लिंटर्स मॉडल के होने के बाद इररिलेवेंस में एमएम इसमें 2 वॉल्टर एंड गॉर्डन. पढ़ो लिंटर्स मॉडल. लिंटर मॉडल हैज 2 पैरामीटर्स. क्यों तकलीफ दे रखते हो? Linter's model has 2 parameters: the target payout ratio, the spread at which current dividend adjusts to the target. बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला, the target payout ratio क्या है अपना. दूसरा, the spread, spread range at which current dividend adjusts to the target. अरे रिस्क स्प्रेड मालूम नहीं क्या है? शेयर्स के साथ रहती है. प्राइस बैंड तो मेरा टारगेट ही है, टारगेटेड पे आउट, लेकिन अर्निंग पे डिपेंड करेगा ना? नहीं. तेरे जेब में नहीं तो देंगे कहां से? तो स्प्रेड भी देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. हाँ या ना? पढ़ो. एकदम आसान चीज है. सबसे मतलब ये बेसिक चीज है. जॉन लिंटर बेस्ड हिज मॉडल on a series of interviews which he conducted with the corporate managers in mid-1950. While developing the model, he considered the following assumption. Firms have a long-term dividend payout ratio. They maintain fixed dividend payout over a long term. Mature companies with a stable earning
may have high payouts and growth companies usually have low payouts, क्योंकि उनको रिटेन अर्निंग रखने, उनको नए नए डिविजन इन्वेस्टमेंट्स करनी है। जो मैच्योर है, वो बड़ी हो चुकी है, उनको स्टेबल अर्निंग चालू है, उनका धंधा सेट है, वो दे सकती है। लेकिन अपने ऐसी छोटी मोटी कंपनी है, उसको बड़ा बनना है, बड़ा बनते टाइम वो ग्रोथ कंपनी है, वो कभी कभी दे सकती है, कभी कभी नहीं दे सकती है। हाँ या ना? Managers are more concerned with the changes in the dividend than the absolute amount of dividend. A manager मतलब वो कंसर्न क्या है? डिविडेंड के अमाउंट से, है ना? एब्सोल्यूट अमाउंट क्या बोला है? चेंजेस इन डिविडेंड अदर देन द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ डिविडेंड. A manager may easily decide to pay dividend of 2 per share if last year 2 it was 2, but paying 3 dividend if last year dividend was 2 is an important financial management decision. क्योंकि अपन क्या दे रहे हैं? कांस्टेंट डिविडेंड की जगह अपन ग्रोथ पे जा रहे हैं। अभी ये भी अपने को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करना पड़ेगा, अपने को सोचना पड़ेगा कि भाई आगे भी इनकम आएगा क्या सस्टेनेबल, नहीं तो ये साल चांदी, अगले साल वापस तांबा, है ना? डिविडेंड डिसीजंस फॉलो चेंजेस इन लॉन्ग रन सस्टेनेबल अर्निंग. क्या बोला था? लॉन्ग रन सस्टेनेबल अर्निंग होगी तो अपन डिसीजन लेने में समर्थ, नहीं रही तो रुकना पड़ेगा ना. सो अपना ग्रोथ कंपनी होगा, कभी ज्यादा कभी कम, कभी धूप कभी बारिश, कभी ठंडी कभी गर्म. जो मैच्योर कंपनी है, बड़ी हो चुकी है, स्टेबल अर्निंग सोर्स है, उनको क्या फर्क पड़ता है? आएगा, उनका हिसाब है कि 20% दूंगा, देंगे, बाकी रखेंगे और उनको पूछने भी नहीं जाएगा, क्योंकि मैच्योर कंपनी में ब्लू चिप में लोग जाने वाले, खरीदने वाले शेयर, आया ना? दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर अ ग्रोथ कंपनी. The managers are reluctant to affect the dividend changes that may have to be reversed. क्यों? बढ़ गया तो नीचे लाना मुश्किल है ना. तेरा डाइट 4 रोटी पे चले गया, उसको 2 रोटी पे लाना मुश्किल है कि नहीं? तेरे पेट की भूख 4 रोटी की हो गई, अभी उसको 3 रोटी पे 2 रोटी पे लाना मुश्किल है कि नहीं है? इससे बेहतर है भूखी ना बढ़ने दे, क्योंकि जो 2.5 रखे, आया ना? अंडर लिंटर्स मॉडल द करंट ईयर्स डिविडेंड इज डिपेंडेंट ऑन करंट ईयर्स अर्निंग एंड लास्ट ईयर्स डिविडेंड. नेचुरल है ना, पिछले साल का कंपेयर करेंगे और इस साल की अर्निंग. D1 मतलब चालू साल का डिविडेंड, D0 पिछले साल का डिविडेंड. In large bracket EPS into targeted payout, earning per share into percentage payout, minus D0 मतलब previous year's dividend into AF. AF is adjustment factor or speed of adjustment. समझा क्या? फॉर्मूला याद रखो, नीचे प्रॉब्लम आया सॉल्व करें. D1 is equal to D0 plus EPS into target payout minus D0 ब्रैकेट कंप्लीट, ये पार्ट हो गया, into AF एडजस्टमेंट फैक्टर और स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट. कोई तकलीफ? समझा? उसके बाद थियरी ऑफ डिविडेंड. थियरी ऑफ डिविडेंड में 2 टाइप है, इररिलेवेंस थियरी, डिविडेंड इज इररिलेवेंट. क्या नाम है? ये इंपॉर्टेंट. डिविडेंड इररिलेवेंट, ग्रोथ ज्यादा मायने रखती है. एमएम अप्रोच. यहां पे रिलेवेंस थ्योरी में क्या है? डिविडेंड इज रिलेवेंट. वॉल्टर्स मॉडल, गॉर्डन्स मॉडल. पक्का? नाउ डिविडेंड्स इररिलेवेंस थ्योरी, मॉडल की नहीं, एंड मिलर, एमएम अप्रोच और हाइपोथेसिस. अपन कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या पकड़े थे उसको? एमएम अप्रोच. यहां पे एमएम हाइपोथेसिस. क्या बेटा? एमएम हाइपोथेसिस. कोई दिक्कत? यहां पे हाइपोथेसिस दिया है, उसके नीचे अकॉर्डिंग टू एमएम हाइपोथेसिस 3 पॉइंट है.
उसके बाद नेचुरली हाइपोथेसिस है तो उसको अजम्पशंस रहेंगे, तो अजम्पशंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तुमको मालूम है। सिचुएशंस अंडर एमएम हाइपोथेसिस दिया है, पहला फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड, थर्ड सिचुएशन, देन एग्जाम्पल दिया है, अरे हाँ है ना। उसके बाद फॉर्मूले दिए है, एडवांटेजेस दिए, लिमिटेशंस दिए, और उसके बाद प्रॉब्लम दिए उसके ऊपर। इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन में ही केस 1 केस 2 दिए है, स्टेप्स दिए है। वो होने के बाद आएगा डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरी, वॉल्टर्स मॉडल और गॉर्डन्स मॉडल। यहां पे भी वही सी चीज, थ्योरी या मॉडल, assumptions, मतलब थ्योरी में क्या क्या है वो, उसके assumptions, एप्लीकेशन जो दिया है वो, मतलब एक्सप्लेनेशन, और अगर अलग अलग सिचुएशन रहे तो उसका वही एक्सप्लेनेशन, देन प्रॉब्लम, फॉर्मूले प्रॉब्लम, देन लिमिटेशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मतलब बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस। समझा? तो ये अपने को 3 सीखना है और उस तीनों के प्रॉब्लम सीखने, कोई तकलीफ? श्योर? चलो अगले लेक्चर में ले लेते हैं अपन। कितना पेज हुआ अपना? 14 ना? अब 14 तक आ गए ना? अभी क्या 15 ही पढ़ना है ना? वो क्या 4 लेने हैं मैं अपने हाइपोथेसिस के, ठीक है चलेगा, यहां तक करो, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में। चलो थैंक यू, बाय।